तो वेलकम एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वरुण। आपने इलेक्ट्रिकल में इस बार 13 रैंक लेके आए हैं। Yes, sir. करेक्ट, इंजीनियरिंग सर्विसेज में टॉप कर दिया आपने। और आप ईएससी प्लस गेट लाइव ऑनलाइन के स्टूडेंट रहे Yes, हैं sir. मेडिजी में, और मेंस में फिर ऑफलाइन भी ज्वाइन किया था Yes, sir. 2024 में। ठीक बात। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी ज्वाइन किया है और जीएस का लाइव ऑनलाइन कोर्स भी लिया है 24 में, और क्विक रिवीजन कोर्स तो किया ही। राइट। सो नाउ आप झज्जर हरियाणा से हैं, और Yes, sir. पास आउट कहाँ से हो तुम? अच्छा, IISER भोपाल। Yes, sir. ओके, वेरी नाइस। तो लाइव ऑनलाइन कोर्स वहीं से जब कॉलेज में, कब के पास आउट हो? Sir, so I passed out with a dual degree in 2023. Like our degree is a basic. ओके, सो इन 2023 में डुअल डिग्री से आप पास आउट किया आपने, Yes, sir. बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो थोड़ा अपने बारे में पहले बताओ कि कैसे ये ख्याल आया, और कैसे कहाँ से ये मोटिवेशन आई कि चलो कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर टॉप ही कर दिया आपने तो। Thank you, sir. Sir, so like when I had passed out from this ICER Bhopal in 2023, so I was thinking of maybe preparing for this prestigious examination. Like it, so first thought that came to my mind was this engineering service examination. Then I looked for like what is the syllabus and which institute provides the best guidance. In that I found made easy, and I straight away joined their batch in June 2024. करेक्ट, करेक्ट। और इन 23 to 24 ऑलरेडी यू हैव जॉइन लाइव ऑनलाइन कोर्स? No, sir. So I had joined the batch in June 2023, just after passing out. हाँ, राइट, 2020, करेक्ट। In June, it was the mains batch. So what was your preparation process? Means apart from made easy, जो घर पे आपने पढ़ाई की है Yes. कॉलेज, वो कैसा रहा था? हाउ यू हैव अप्रोच्ड द सिलेबस, मींस टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो मैं क्लास में बताता था तुम लोगों को, तो कैसे कैसे उसको अप्रोच किया? So, like, sir, during the live online course that I had joined, our classes were mostly from 2 p.m. to 10 p.m. in the evening. So, like, what I used to do, so whatever is being taught in the classes, I just used to revise it after the classes for maybe 10-15 minutes. Then, early next morning, I used to once again revise what has been taught yesterday and maybe practice two or three numericals on it. Then simultaneously, I also used to plan my revisions and practice more and more questions before the start of my classes again for the So next day. whatever content or material Medici has provided you, what do you think? Apart from that, is anything required or that is sufficient? Means if you want to add some value, so That's, that is required or not? no, sir, no extra content is required. So I have only studied from the Medici notes that are available, that is being taught in the class, and sometimes only I have referred from the books. Like referring to the technical books is also not required. The notes and the question bank is sufficient for preparation. So for as far as question is concerned, previous year questions लगाए Yes, sir. होंगे, वर्कबुक लगाए होंगे, Yes, sir. और कोई बुक वगैरह भी सॉल्व किया? No, sir. I have just solved this PYQs and the workbooks. Like अच्छा, I have tried to solve it 2-3 times to grasp the concepts. करेक्ट, वेरी नाइस। तो जैसे अभी जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए अभी जितना टाइम है गेट के लिए या इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो चलो समय है, तो Yes. कैसे उनको अप्रोच करना चाहिए? जैसे जीएस के लिए क्या गाइड करते हो तुम एज ए मेंटर, बताओ उन बच्चों को क्या करना चाहिए। So like initially for GS, just start by reading them. Like don't focus like you are not able to understand it and you are not able to grasp it. So initially just give a reading, maybe starting for like 15-20 minutes every day. Then this will develop a habit, and after that you would be able to grasp more and more knowledge, and GS would become very easy for everyone. Okay. So you have only studied the Medici, whatever classroom notes is there, and the Medici material, right? Yes, sir. Apart from that, if you have tried anything? No, sir, I did not look for anything. अच्छा, I just focused on the material. तो उसी को आपने बहुत अच्छे कई बार पढ़ा होगा, कई बार है ना, रिवीजन किया। Yes, sir. और तो कैसे टेक्निकल और जीएस को, हाउ यू हैव मैनेज बोथ द सब्जेक्ट्स इवन विद कॉलेज? Yes, sir. So, like, I had joined the Medici online batch in June 2023.
So I had just only one regret, that I joined the course late. So like I first of all I focused on this technical aspects only. I used to revise it continuously and side by side prepare for GATE. So like for this GS course I was not able to prepare well enough. I just understood what was being taught in the class and one or twice I read what is the notes. सो क्या लगता है कितने मार्क्स आ रहे होंगे जीएस में रफली? Sir, in first paper, I think sir around 60-65. राइट, इस बार पेपर भी टफ थे ना, Yes sir. तो काफी है 60-65 तो। और टेक्निकल जो ऑब्जेक्टिव पेपर थे उसमें? Sir, technical I'm expecting around 180-190. अच्छा, ठीक है, गुड मार्क्स। और मेंस में? Sir, my target was like maybe securing minimum 200 in each subject. So I am thinking अटेम्प्ट like कितने का रहा था, कोई so, आइडिया? so like I have written in each and every question some things. So approximate attempt for each paper is around 260-270. तो आज स्पीड अच्छी थी, यानी टेस्ट सीरीज काफी प्रैक्टिस करी होगी आपने? Yes, sir. The last 3-4 test series, that was the full syllabus test, really helped me a lot. Like it gave me an aspect idea like how to manage properly my time and what all questions we should select. Correct. So once student already has attended the MEDIZ full-time classroom course, then मैंने देखा है मोस्टली बच्चे जो मेंस ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स होते हैं जो भी उनके लिए रिलेवेंट होता है वो जरूर करते हैं, उसमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस काफी हो जाती है, राइट? तो उससे कहीं ना कहीं स्पीड में फर्क पड़ता है, व्हाट डू यू थिंक? Yes, sir. Means offline course or maybe online also, it is very beneficial for each and every student, irrespective of either he wants to give the ESC paper or not, because it gives a different aspect to the study of the subject. And also there are like many questions. So a student understands very deep, subject in deep manner. वेरी नाइस। और अल्टीमेटली प्रॉब्लम प्रैक्टिस ही मेन, हम क्लास में मैं बोलता भी हूँ, तुम लोग को भी बोला था, Yes, sir. पढ़ते क्यों है, अरे क्वेश्चन कर सके, राइट? Yes, sir. तो अल्टीमेटली एग्जाम में भी क्वेश्चन ही आता है, राइट? एग्री करते हो ना? Yes, sir. अरे तुम तो हरियाणा से हो यार, थोड़ा हिंदी में भी बोल दो यार, तो लोग थोड़े बच्चे वो होंगे ना कि हाँ भाई अपना हरियाणा Yes, से sir. पढ़िए, करेक्ट? Uh, तो थोड़ा yes, sir. हरियाणवी भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। No issue, sir. I will speak. हाँ, राइट ना? क्योंकि ये जो सेशन है हमारा, ये बच्चों को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं हम, उनको उन तक उन चीजों को पहुंचा सकते हैं जो टॉपर्स ने अपने लिए अप्लाई किए हैं। वैसे तो क्लास में बताते हैं बट फिर भी मोटिवेशन तो Yes, sir. मिलता है ना, इस टाइम में तो और जरूरत है बच्चों को, राइट? Yes, sir. तो जैसे अभी जो टाइम बचा हुआ है, मान लो अभी गेट की बात करते हैं, क्योंकि आपने गेट में भी 2024 में रैंक लेके आए हैं, 345 रैंक है, बट अच्छा इसमें कोई कॉल आया था 345 रैंक में? सर मैंने पीएसयू किसी में भी अप्लाई नहीं किया, मेरा स्टार्टिंग से गोल था सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज। अच्छा अच्छा, अप्लाई नहीं किया। इधर तो लग रहा होगा तुम्हें, चलो ये तो हो ही जाएगा, तो है ना, वेरी नाइस। तो जैसे अब गेट के लिए क्या करना चाहिए, अभी जो कुछ समय बचा हुआ है, क्या गाइड करोगे तुम बच्चों को? सर पहले तो देखो कि तुम आप कितने कोर्सेज कर चुके हो, जो भी एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, फिर उनका प्रॉपरली रिवीजन प्लान करो अच्छा, और कोशिश करो कि रोज कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे 10 से 15 क्वेश्चन रोज सॉल्व हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। और मे बी विद इन स्टार्ट 10 से 15 क्वेश्चन बस? मैंने तो बोल सर रखा है फॉर 100 ईच क्वेश्चन डेली सब्जेक्ट। सॉल्व ये सर, करो। तुम लोगों ये को भी सर, बोला था, नहीं हाँ। सर, आपने कहा था कि 20 से चालू करो और हाँ, मैक्सिमम इसको 50-60 तक रोज लेके जाओ। करेक्ट, हम्म, वेरी नाइस। तो क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस तुमने की है, यस सर। क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस वाला? यस सर। वेरी नाइस, वेरी और सर नाइस। टेस्ट सीरीज पे थोड़ा ज़्यादा फोकस दो। मेरी थोड़ी यही गलती रहेगी कि मैं टेस्ट सीरीज पे ढंग से फोकस नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी थी गेट के पेपर से पहले, कि जितना आप फुल सिलेबस टेस्ट में मेडीजी के टेस्ट में ला रहे हो ना, उतना ही आप गेट में लाते हो। करेक्ट करेक्ट। और बहुत सारे फुल सिलेबस टेस्ट दोगे तो इन विच एरिया यू हैव टू इम्प्रूव, वो एनालाइज भी कर सकते हो, राइट? फिर यस उनको सर। इम्प्रूव भी कर सकते हो टाइम। एंड ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, लाइक हाँ, ट्राई टू मूव ऑन फॉरवर्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी। राइट, इवन यू आर स्कोरिंग लेस, दैट इज नॉट यस सर। ए वॉरी, बट पॉइंट ये है कि इन दोज एरियाज वेयर यू आर वीक और यू आर नॉट एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट, उनको सीखो, है ना, टाइम यस रहते। सर। बिल्कुल ठीक बोला भाई ने, बहुत अच्छा। तो अब आगे, अभी तो तुमने कॉलेज से निकलते ही टॉप मार दिया, तो आगे कुछ सिविल सर्विसेज वगैरह कुछ प्लान है?
क्योंकि अभी देखो पिछली बार जो रैंक 1 था सिविल सर्विसेज में वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यस ही सर। है। हाँ। सर अभी कुछ प्लान तो नहीं है, फादर भी कह रहे थे कि एक बार ट्राई देने में कुछ नहीं जाता है। और पर क्या। अभी तो मैं एक बार और इंजीनियरिंग सर्विसेज देना चाहूंगा रेलवे के ताकि। लिए। यस सर। अच्छा, ताकि। फॉर्म तो भर ही दिया होगा वैसे भी। यस सर। हाँ, तो हाँ एक बार दे लो। वो तो ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि आपकी एज कम है तो कर सकते हैं, क्योंकि जो तुम्हारे सीनियर्स है जो पिछली बार एग्जाम वगैरह निकाले थे अभी ज्वाइन कर चुके हैं तो वो लोग करते हैं। क्योंकि आजकल ऑनलाइन भी आ गया है ना, तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लेते हैं कोर्सेज और अपना ट्रेनिंग और इसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, क्योंकि वहाँ तो जीएस जो पेपर होता है शुरू वाले उसमें तो बस सुनते रहना है, वो तो वैसे भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम न्यूमेरिकल तो है नहीं कि सॉल्व करनी है। और इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल रहेगा, ऑलरेडी तुमने इतने सारे सॉल्व कर दिए हैं, है ना, मेडिसी वर्कबुक हो, प्रीवियस ईयर हो, कन्वेंशनल हो, सब लगा दिए। मेंस बैच भी ज्वाइन किया तो वो भी मेंस का भी वर्कबुक लगाया। तो मुझे नहीं लगता है अब तुम्हें कुछ छूट रहा है ना, सब तो कर ही दिए। तो अच्छा, इंटरव्यू के लिए क्या कहते हो, जैसे 2023 में भी अपियर हुए थे नहीं ईएससी सर, फर्स्ट टाइम में था। फर्स्ट टाइम। तो क्या लगता है तुम्हें, यहाँ जो तुमने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लगा तुम्हें? यस सर। मैंने जैसे यहाँ पे 2 इंटरव्यूज दिए थे, और अच्छा। मैं घर पे भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करता रहता था। अच्छा। और फिर जो ये मेडीजी क्या इंटरव्यू गाइडेंस बुक आती है, उसने भी काफ़ी चीज़ हेल्प करी है। हाँ, तो उसमें जो। टेक्निकल सारे क्वेश्चन से एक साथ मिल गए होंगे। राइट, वेरी नाइस। तो क्या पूछा वहां पे, एक दो क्वेश्चंस या कैसे इंटरेक्ट किया, कुछ शेयर करना चाहोगे? Yes. So initially, the interview started with informal discussion on my hobbies. Like, I had my hobby is music. So like the chairman that was there of the board, he asked a lot of questions regarding this music concept only. So he moved on from the Hindi music, Bollywood music to Punjabi music to foreign music, and many other Which things. music you like? So I sir usually listen to this Haryanvi music or this Punjabi music only. अरे क्या बात है, तो एक बार हरियाणवी कोई सॉन्ग हो जाए, थोड़ा दो लाइन सुना दो। सर गाने का शौक नहीं है, इतना सुनने का है। अच्छा, सुनने का है, अरे वेरी हाँ। स्मार्ट है। सर। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। तो जो फोक सॉन्ग होता है वहाँ का वो क्या? नहीं सर, नॉर्मल आजकल जो चलता है, हाँ, जैसे कि एक दो बताओ तो गाना। जैसे हिप हॉप टाइप हो गया, जैसे अच्छा, हिप दिलजीत हॉप टाइप। दोसांझ वगैरह गाता है आजकल जैसे। अच्छा अच्छा, हम्म। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो और उसके बाद फिर क्या हुआ? सर उसके बाद फिर 3 टेक्निकल मेंबर्स और थे, तो इन्होंने हर टेक्निकल मेंबर ने 4 4 5 5 क्वेश्चन पूछे। वो भी काफी बेसिक क्वेश्चंस थे, ज्यादातर तो इंटरव्यू गाइडेंस बुक में ऑलरेडी कवर्ड थे। करेक्ट करेक्ट, यानी टेक्निकल इज नॉट एन इशू। वैसे भी यस सर। इतना पढ़ के गए, और जो मेडिसी की इंटरव्यू गाइडेंस की यस बुक सर। होती है उसमें तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। यस करीब सर। करीब सभी कवर्ड है, राइट। इवन और भी कोई बच्चे अगर और भी किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से उसको भी एक बार यस सर। थॉरो होके जाएं तो उनको बेसिक जितने कॉन्सेप्ट हैं कवर हो जाते हैं, यस राइट। सर। व्हाट यस डू सर। यू थिंक? यस सर, और एक दो बार एक दो मॉक इंटरव्यूज और दे दो, क्योंकि जो क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट है बीडीसी का और जो ये वहाँ पे था, वो एनवायरनमेंट काफी सिमिलर सा था मॉक इंटरव्यूज का। तो करेक्ट। मॉक इंटरव्यूज से ये बेनिफिशियल होता है कि अगर किसी भी बच्चे के मन में कोई डर हो या कुछ हो, वो चला जाता है पूरा। तो कि। हाँ। कितने मॉक इंटरव्यू यहाँ पे दिए थे? सर 2। दो। तो पहले वाले में कितने मार्क्स मिले थे तुम्हें यहाँ पे? सर इन द फर्स्ट इंटरव्यू आई थिंक आई गॉट अराउंड 122। और सेकंड में? सर व्हाट फ्रॉम व्हाट आई कैन रिकॉल इट वाज अराउंड 130 आई थिंक। ये तो ये वहाँ भी यूपीएससी मुझे जैसा बात करके लग रहा है 125 के अराउंड, 120 to 125 तुम्हें मिले होंगे ऐसा लग रहा है मुझे। तो बाकी तो टॉपर हो तो क्या पता थोड़े ज्यादा भी मिले हो, है ना। तो और नेक्स्ट ईयर भी एग्जाम दे रहे हो, है ना। यस सर। और जो बच्चे अभी एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए कुछ मैसेज जो तुम देना चाहो बताओ, कैसे वो, मतलब जो मटेरियल उनके पास है वो तो मेडीजी ने प्रोवाइड कर रखा है, सब कुछ क्लासरूम भी उन्होंने किया। तो अब कैसे वो, मतलब क्या करना चाहिए अभी ये जो 60-70 डेज हैं गेट के लिए? So, like, first of all, I would like to say listen blindly to your teachers, what they have been teaching, because they have experience of very vast knowledge. Like, they have 15 20 years of experience of teaching only. And then focus on your mindset also. Like, side by side revision, take a positive mindset as forward and believe in yourself.
and just keep practicing the questions, and one day you will also crack it. Oh, great, great. So thank you so much. All the very, very best. Thank you, sir.